Hi, I am Syed Rashid from Ahlebaid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching Ahlebaid High School and Junior College YouTube channel. Today we will just going to end our fifth chapter, 10th class. As you know, the name of the chapter is The Human Eyes and Colorful World. Might be in this session I will going to complete this chapter. To complete this chapter, we have few activities with it we need to do, and we need to go through few terms like few small definitions. Then our topic will end. The activity is nothing but to know and to understand about the least distance of clear vision and its value. So to understand this we are doing one activity. For that you can do by your own. अभी जैसा कि आप जानते हैं, मैं सैयद राशिद हूँ, अहलेबैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कोटला अलीजा हैदराबाद से। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अहलेबैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज यूट्यूब चैनल। तो अभी हमारा जो फिफ्थ लेसन है वो हम ख़त्म करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। और इसके लिए हम कुछ टर्म्स पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट आई एम रीडिंग द टर्म। टेक अ टेक्स्ट बुक एंड होल्ड इट विथ योर हैंड इन फ्रंट ऑफ यू एट अ सर्टेन डिस्टेंस। नाउ ट्राई टू रीड द कंटेंट ऑन द पेज। स्लोली मूव the book towards your eyes till it is very close to your eyes. What change do you notice? That means आपको एक बुक ले लेना है. For that actually I want to show you. Now I have taken this book. Okay, I need to read this book. Normally I have to read. I can able to try the read. Like I am reading the third side will those lines perpendicular to the bisector of intersecting at 1,0 like that. But I am just moving slowly this book very close to my eyes. I am just closing this book to my eyes. So will I able to see? think सोचिए पूरा चिपका दिया, समझो ऐसा आँखों को मैं देख सकता हूँ. The obviously answer is no. We are unable to see the text in the book. You may see that printed letter on the page of the textbook appears blurred or you will feel stain in the eyes. आपका जो आँख है उसके अंदर आपको दर्द महसूस होने लगेगा, और जो पेपर के अंदर जो प्रिंटेड टेक्स्ट है वो आपको बिल्कुल ब्लर्ड दिखेगा. नाउ स्लोली मूव द बुक बैकवर्ड टू द पोजीशन वेयर यू कैन सी क्लियरली. अब आप वो बुक को थोड़ा सा स्लोली मूव करिए जो आप क्लियरली देख सकते. उस पोजीशन पे आके आपकी बुक को स्टॉप कर लीजिए. ओके. Ask your friend to measure the distance between your eyes and the textbook at this position. Note down its value. Repeat the activity with other friends and note down the distance of for distinct vision in each case. अब आप क्या कीजिए, जहाँ पे भी आप क्लियर देख सक रहे हैं, आपके फ्रेंड को आके बोलिए आपके आँख से लेके जो टेक्स्ट तक का डिस्टेंस कैसा मेज़र करना. प्रोसीजर बहुत आसान है स्टूडेंट. ये आँख पे स्केल लगा दीजिए, लगा के पूरा आप यहाँ तक मेज़र कर लीजिए. ठीक है. ये चीज़ आप आपके फ्रेंड के साथ भी करिए. डिफरेंट एजेस यानी डिफरेंट एजेस के, जैसा कि आप खुद अपने साथ कीजिए. हुआ तो आपके टीचर के साथ कर सकते हैं आप ये एक्सपेरिमेंट, और आपके कोई बुज़ुर्ग है जैसा आपके ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, उनके साथ भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. सो फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल दिस डिस्टेंस ऑफ द क्लियर विजन. व्हाट वैल्यू डू यू गेट फॉर एवरेज डिस्टेंस? From this activity you will come to know that to see an object comfortably and distinctly you must hold it at a distance about 25 cm from your eyes. This distance is called least distance of distant vision. This varies from person to person with age to age. At young age, say below 10 years, the muscles around the eyes are strong and flexible, can bear more strain. Therefore, the least distance of distance vision at this age is as close as 7 to 8 cm. In old ages, the muscles cannot substance more strength, hence the least distance of distance we can shift to the larger value, say about 1 to 2 meters or even more. अब आप देखिए ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन है, अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती है, लेकिन यूजुअली जो इसका एवरेज वैल्यू होती है आपको 25 सेंटीमीटर होगी. ओके. एंड द पर्सन जो बच्चे किड्स है बिलो है, ठीक है, बिलो 10 ईयर्स के है, तो उनको हो सकता अबाउट 7 to 8 सेंटीमीटर में आप देख सकते हैं, क्योंकि उनके मस्कुल. और जो ओल्ड है, ओल्ड वालों की जो वैल्यू बहुत ज़्यादा शिफ्ट होकर आपको 1 to 2 मीटर तक हो सकती है. यानी कि हम ये बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक जा सकती है. ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है. नाउ आर वी एबल टू सी द टॉप एंड बॉटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस एट द डिस्टेंस
of about 25 cm from your eyes irrespective of its shape. Let us find. देखिए पहले तो हम इसका डिफिनेशन लिख लेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन एंड इट्स वैल्यू। इसको मैं थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच अ पर्सन कैन एबल टू सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली और क्लियरली इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर के साथ आप डिस्टिंक्ट भी लगा सकते हैं। The average value, its value means the average value of least distance of clear vision is 25 centimeter, but it varies person to person, age to age. पर्सन से पर्सन में वेरी होती, एज टू एज वेरी होती। ये बहुत आसान डेफिनेशन है, ये आपको यूजुअली 1 या 2 मार्क्स में पूछ सकता, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और एक चीज़ पूछता हूँ मैं, जैसा ही 25 सेंटीमीटर पे हम वो रख दिए, कौन सा भी ऑब्जेक्ट रखे, तो क्या हम पूरा होल कंप्लीट ऑब्जेक्ट देख सकते हैं? तो आंसर रहेगा ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट हमको देखने में मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए हम और एक चीज़ करेंगे। 2 चीज़ें होते हैं यहाँ पे, ये एक्टिविटी नंबर 2 बोलकर रहेगा हमारे रीडर के हिसाब से। दिस एक्टिविटी इफ़ यू वांट यू कैन रीड फ्रॉम योर रीडर से एक मरतबा पढ़ सकते हैं, बट द थीम ऑफ दिस एक्टिविटी आई वांट टू एक्सप्लेन हियर। जो मेन वो था एक्टिविटी, हमको 2 चीज़ें समझना है इसमें, अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस और एक है एंगल ऑफ विजन एंड इट्स वैल्यू। व्हाट इज अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस? ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले डिक्टेट करता हूँ, आप लिख लीजिए। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस। दिस इज पॉसिबल विथ आवर आई बॉल। चलिए अब थोड़ा समझा देता हूँ। अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस को बोलते, किसको बोलते हैं? हमारे आँख के अंदर जो फोकल लेंथ रहती, लेंस की जो फोकल लेंथ रहती, सेकेंडों में चेंज कर लेती है हमारी आँख, सेकेंडों में। तो उस जो कैपेसिटी है या फिर उस प्रॉपर्टी ऑफ आइस को हम, या प्रॉपर्टी ऑफ लेंस को हम बोलेंगे अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस। ये कैसा होता है देख लीजिए। हमारा यूजुअली आई का बॉल कुछ इस तरीके से रहता है, जैसा आप जानते हैं हमारा आइस है, ठीक है। आइस की लेंस तो हमारी पूरा यानी गोल तो नहीं फिर सकती, बट एक सर्टेन एंगल पे अपने आप को एडजस्ट कर सकती। कैसा कर सकती? अब आई आप ऐसा देख रहे हैं तो ऐसा है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, यानी कि सही कर देता हूँ, तो हमारी आई लेंस क्या हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। यू कैन सी हियर, यहाँ पे आई लेंस कुछ इस तरीके से बन रही, तो यहाँ पे आई लेंस कुछ इस तरीके से। तो ये दोनों में क्या फ़र्क हो गया? इन दोनों का फोकल लेंथ में चेंजेस आ जाते। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस। एंगल ऑफ विजन एंड इट्स वैल्यू। एंगल ऑफ विजन किसको बोलते हैं? सो फॉर एंगल ऑफ विजन लिसन केयरफुली, द मैक्सिमम एंगल एट विच वी आर एबल टू सी द होल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑफ एंगल ऑफ विजन। द एंगल ऑफ विजन फॉर ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज 60 डिग्री। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड एज टू एज। तो जैसा कि समझ गए आप, एक ऐसा मिनिमम एंगल, ठीक है, जिससे हम कंप्लीट, यानी कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम ये ऑब्जेक्ट को अगर हम इतना देखेंगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को अगर हमको सिर्फ ऑब्जेक्ट इतना ही दिख रहा तो एक सर्टेन एंगल रहता, लेकिन जैसा ही हमारा एक एंगल जैसा ही 60 डिग्री पे जाएगा तो हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट को देख सकते। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ विजन कहते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ विजन हो गया। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। ये पावर ऑफ लेंस और एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑलरेडी हमने कंप्लीट पढ़ लिया है टॉपिक, तो इससे हमारा एक लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। नाउ द टाइम टू पुट अ ग्लिम्स, एक थोड़ा सा रोशनी डालेंगे हमने क्या क्या पढ़ा था द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड में। Before revising our lesson, one thing I'd like to tell you that this thing which I wrote, like least distance of distance vision, accommodation of light, eye lens, angle of vision, these 3 definition I am going to place you on your screen. Make sure copy and learn. Now the time to see the small definitions on your screen now. Hope you have seen the definition from screen. Now time to revise our lesson. तो हमारे लेसन का नाम है द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। हमने स्टार्ट किया था लेसन, ठीक है, द आई और उसके स्ट्रक्चर से, ठीक है, आई और उसका पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था।
आफ्टर दैट हमने आई और उसका स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे। आई से रिलेटेड जो डिजीजेस रहते वो हमने पढ़ा था, जिसका नाम था, एक मायोपिया था, एक था हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट हमने थोड़ा सा ग्लिम्स डाला था प्रिस्बायोपिया पे, और उसके साथ एक डिजीज़ का नाम था कैटारेट्स। इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं समझाया था, छोटी सी टॉपिक थी, वही हमने करे थे, कैटारेट्स। उसके बाद हमने ये डिजीजेस कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ गए थे। आगे बढ़ने के बाद हमने पढ़ा था लाइक डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, डिस्पर्शन कहते हैं उसको। डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने पढ़ा था कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, क्या रहता। उसके बाद हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट की तरफ गए थे। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। उसके बाद पावर ऑफ लेंस हमने पढ़े थे इसी दौरान। पावर ऑफ लेंस पे हमने एक प्रॉब्लम भी किया था, पावर ऑफ लेंस एंड वन प्रॉब्लम। उसके बाद हमने थोड़ा सा जाना था प्रिज्म किसे कहते हैं, कि एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, और मैं आपको बोला था कि प्रिज्म दिखाऊंगा। ओके, फिर कभी हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस होंगे, व्हाट्सएप पे कभी मैं इमेज लेके भी भेजूंगा अपने ग्रुप में, या फिर ऑनलाइन क्लास होने पे आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड कराइए। श्योर आई विल गोइंग टू शो यू हाउ द प्रिज्म इज। प्रिज्म को मैं दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद हमने ये कंप्लीट टॉपिक पढ़ी थी। फिर उसके बाद आज की अभी हम इसी पार्ट में ये 4 टॉपिक्स हमने देखे थे। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स हमने देखे थे। वेराज आपका पावर ऑफ लेंस तो पहले ही हम पढ़ा दिए थे। एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, इट इज़ समवॉट रिलेटेड टू आवर प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर हमने एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन देखा था, और हमने देखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ प्रिज्म भी हमने देखा था। इसी में आपको शायद याद होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ प्रिज्म। ओके, और इसमें और एक एक्स्ट्रा एंगल था हमारे पास, एंगल ऑफ इमरजेंस, याद है, एंगल ऑफ इमरजेंट, EMERGENT। तो इस सारे चीज़ें हमने प्रिज्म, और प्रिज्म को लेके हमने उसका एक फार्मूला भी पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड, क्या था, N इक्वल्स टू साइन, ओके, A प्लस D/2 बाई साइन A/2। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है प्रिज्म को लेके इस लेसन का हमारे। और एक हमने एक फार्मूला पढ़ा था पावर ऑफ लेंस का, जो यूजुअली होता है P इक्वल्स टू 1/f होता है। ये भी एक फार्मूला हमारे लेसन के लिए हेल्पफुल होगा, पावर ऑफ लेंस का था। तो इतने सारे चीज़ें हमने करे थे। देखिए स्टूडेंट, मैं जितना हो सका अपने एफर्ट्स लगाया, ह्यूमन इज कलरफुल वर्ल्ड आपको पढ़ाया, मगर चेक कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वास्ट दे देता रीडर में। जैसा ये 2 टॉपिक्स की हम बात ले लेंगे, अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस एंड एंगल ऑफ विजन। इसके बारे में आपको 2 पेज की बहुत एक बड़ी थ्योरी दिया, तो उतनी ज़्यादा थ्योरी के लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। सिर्फ ये 2 टर्म्स क्या है इसको समझना, इसके ऊपर आपको वर्कआउट काम करना है, यानी कि समझ के याद कर लीजिए। और हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्शन ऑफ लाइट को लेकर भी बहुत सारी थ्योरी दिया। वेरस डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे तो आपको तकरीबन 3 एक्टिविटीज़ दे दिया, एक्टिविटी नंबर 3, एक्टिविटी नंबर 4, एक्टिविटी नंबर 5। फिर उसके साथ साथ और बहुत सारा इसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट का इक्वेशन भी बता दिया उसमें। एक लाइट का इक्वेशन शायद हम आगे के लेसन में पढ़ लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, नीड नॉट टू वरी। तो ये सारे बहुत सारे चीज़ें दिया था, लेकिन ये 2 टॉपिकों को लेके इम्पॉर्टेंट क्या है देखिए। डिस्पर्शन ऑफ लाइट को लेके 3 इम्पॉर्टेंट आंसर हमारे पास क्या है बोल तो, एक है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है, ऐसा रहता है। नेक्स्ट पूछता है राइट एन एक्टिविटी टू शो हाउ रेनबो फॉर्म्स। रेनबो इज नथिंग बट वेबजियर, VIBGYOR, वेबजियर। तो रेनबो को लेके तकरीबन हमारे पास 3 टॉपिक्स है रीडर में, ठीक है। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट को लेके जो इंपॉर्टेंट आंसर आपको पूछ सकता वो ये है कि वाई समटाइम्स कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू, यानी जो स्काई का कलर है ब्लू कई को दिखता। सेम वाई समटाइम कलर ऑफ स्काई अपीयर्स वाइट, यानी कि जो स्काई वाइट है वो वाइट क्यों दिखता। थर्ड आपको पूछ सकता वाई सन सेटिंग वाई इट इज सिटिंग रेड, यानी जब उन्हें सन जब गुरूब हो रहा, डूब रहा है, सनसेट हो रहा, तो रेड कई को होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट आंसर आइदर आपको 4 मार्क्स में भी पूछ सकता, आइदर 2 मार्क्स में भी पूछ सकता स्कैटरिंग ऑफ लाइट को लेके। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थोड़े इंपॉर्टेंट आंसर्स तो मैं है बोलता हूँ आगे। ये आपका पूरा कंप्लीट एक ह्यूमन आइज कलरफुल वर्ल्ड, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हुआ इस सारे टॉपिक्स को लेके।
तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जितना भी आपको समझाया वो आप नोट्स बनाने पे ही आपको बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। वन मोर थिंग मैं क्या करूँगा, एज यू आर इन 10th क्लास, जैसा कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको और बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती, तो इसमें से मैं एक आपको जैसा ही एक स्क्रीन लगाता हूँ जिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, आपको वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज एन एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट और एज एन नॉलेज। तो वो सारे क्वेश्चंस पहले मेहनत कीजिए, वर्क कीजिए उसके ऊपर। आई थिंक इट इज़ इनफ, वो जो क्वेश्चंस मैंने बनाया था वो काफ़ी रहेंगे, उतना आप पढ़ लीजिए, आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगा और आपके ह्यूमनाइज कलरफुल वर्ल्ड को लेके नॉलेज के एतबार से भी वो काम आएगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो मैं बनाया इसमें ये आई का स्ट्रक्चर कवर हो रहा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फ्रिज बायोपिया, कैटेगरीज ये भी कवर हो रहा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कवर हो रहा, पावर ऑफ लेंस कवर हो रहा। ये पूरे मैं जो इंपॉर्टेंट आंसर्स दे रहा हूँ वो आप उस पर काम कर सकते, बहुत ही अच्छी चीज़ है वो। नाउ टाइम टू सी दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन नाउ। Hope you have saw the important question from your screen. Make sure these answers available while in my lecture itself. जो मैंने लेक्चर दिया था उसी में आंसर्स आपको पूरे मिल जाएंगे। आप यानी कि लिखना है उसको लिखिए, लिखकर चेक कीजिए। और कुछ मैं आपको इमेजेस भी लगाया था द आइज एंड स्ट्रक्चर का, सिर्फ आपको डायग्राम दिया था, वेराज आपको जो टर्म्स है वो आप थोड़ा सा लिख लेने के लिए बोला था। प्रिस्बायोपिया का भी मैंने इमेज लगा दी थी, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे वो एक इमेज लगाया था, वाइल सेटिंग सन इज अपीयर्स रेड, यानी कि जो सूरज गुरूब हो रहा वो रेड क्यों हो रहा, इसका भी मैंने आंसर लगाया था। पावर ऑफ लेंस और इसका प्रॉब्लम तो मैंने बोर्ड पे ही कराया था, प्रिज्म को लेके ये फार्मूला बोर्ड पे लिखा के उसका प्रॉब्लम भी मैंने कराया था। तो ये हमारा एक कंप्लीट चैप्टर हुआ ह्यूमनाइज और कलरफुल वर्ल्ड को लेके। तो होप यू एंजॉय दिस चैप्टर, मेक श्योर you need to put few efforts from your side also. And one more thing, if you have any doubt you can ask me through online. जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं आप ज़रूर आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड. So that's all about our today's topic as well as the complete lesson named as the humanized and colorful world. Thank you. Have a great time. You were watching Ahlebad High School and Junior College YouTube channel from Ahlebad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. I am Sayyid Rashid. Till then, take care. Have a great time. Thank you.